Okay, good evening, everyone. So, we are going to revise Unit 5 of Paper Code 55, Labor Welfare. And the name of the unit is Industrial Relation. So, it is just the final revision for you. Okay, and people, those who are preparing for the next NET exam, Labor Code 55, this can be useful for you also. Okay, so this is a brief this is very brief notes which I have prepared, and you will find this notes in description also before below my video. Okay, so let's start with this. So concepts of industrial relation is the first topic of unit 5. Okay, so there are different what do you mean by industrial relations? So industrial relation means the relations which is maintained in between the employer and the employee, the workman and the employer, the workman and the workman. Okay, so in industrial relations, we study how a relationship has to be built between the employer and the workers so that there remains a harmony inside the organization. Okay, now there are different concepts which you have to understand before starting the industrial relation. Okay, so that you can understand this industrial relation in a better way. The first one is collective bargaining. Okay, so what do you mean by collective bargaining? Bargaining word, we understand that, right? We bargain for better options. Okay, so collective bargaining means negotiations between the employers and employees represented by unions to agree on wages, benefits and working conditions. Okay, so collective bargaining क्या होता है? ये negotiations होता है between the employer and the employees to agree upon wages, मतलब सैलरी के ऊपर अग्री करने के लिए, बेनिफिट्स, द बेनिफिट्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज, उसके ऊपर दे अग्री, दे बोथ विल अग्री, एंड वर्किंग कंडीशंस, उनका क्या वर्किंग कंडीशंस होगा, किस वर्किंग कंडीशंस के अंडर में वो काम करेंगे. So collective bargaining is basically this. Okay, so it is the negotiation which is done between the employer and the employee, and the basis of this negotiation is generally wages, benefits and working conditions of the employees. Trade unions. So what do you mean by trade unions? So trade unions क्या होता है? ये एक group होता है that speaks to the management. ये management से बात करती है on behalf of the workers. So it's a team of workers. Okay, it's a team of workers that is generally prepared by the workers. And why it is prepared inside the organization? It is generally prepared for representing the workers in front of the managements. Okay, so organizations of workers that aim to protect and promote their interest in the workplace. So organization means it's a sort of company. ये एक तरह का कंपनी होता है जो वर्कर्स के द्वारा ही बनाया जाता है ताकि उनके इंटरेस्ट को, उनकी बात को मैनेजमेंट के सामने रखा जा सके. और ये जनरली बनाया जाता है वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट्स मतलब झगड़ा, नाम से ही पता चल रहा है. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है? द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज दैट कैन लीड टू स्ट्राइक, लॉकआउट्स और अदर फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन. तो ये एक तरह का झगड़ा होता है, एक तरह का कन्फ्लिक्ट होता है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है एंड कैन लीड टू स्ट्राइक्स को लीड कर सकते, इससे स्ट्राइक्स भी बढ़ सकते, इससे स्ट्राइक्स हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, मतलब एम्प्लॉयर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर सकते हैं, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन. ओके, नेक्स्ट इज ग्रीवांस प्रोसीजर. तो grievance procedure. So grievance means any action that is being taken to resolve the industrial disputes. Okay, so grievance procedure नाम से पता चलता है, it's a mechanism for the employees to raise and resolve complaints or issues related to the employment. तो ये एक ऐसा तरीका है, ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं कंप्लेंट्स के थ्रू और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स. So what is disciplinary procedures? It's the process for addressing employees misconduct or underperformance. तो अगर कोई एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में अप टू मार्क
रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस उसके लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीजर रेज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑर्डर टू लेट हिम नो, उसको ये जनाने के लिए कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर रहे हैं, सो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, ना एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इसका क्या मतलब है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अलाउ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उनके डिसीजंस को लिया जाता है और उस पर गौर किया जाता है, और उनको उन पे ध्यान देके उनको कभी कभी अप्लाई भी किया जाता है। ओके, सो इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सच एज थ्रू वर्क काउंसिल और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, अभी नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब हमको पता है इंडिपेंडेंसी। नाउ गिविंग एम्प्लॉयज अ वॉइस इन द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को आवाज़ देते हैं, उनको अलाउ करते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सके ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, नाउ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है? कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, टकरार जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में होता है। ओके, so strategies and techniques for resolving industrial disputes such as mediation, arbitration and conciliation. So conflict resolutions are techniques or strategy, वो एक ऐसे techniques है, strategy है, वे हैं to resolve industrial disputes, industrial झगड़ों को solve करने के वो तरीके हैं। और ये टेक्निक्स क्या क्या है? मीडिएशन, इसको हम मीडिएशन कहते हैं, आर्बिट्रेशन से भी हम रिजॉल्व करवाते हैं ये कन्फ्लिक्ट, और काउंसिलेशन से भी हम रिजॉल्व करवाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लेबर लॉज। ओके, so regulations and legislations governing employment relationship such as minimum wages, working hours and health and safety. तो लेबर लॉज का क्या मतलब है? तो ये रेगुलेशंस है, तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं, लॉज हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं। सच एज मिनिमम वेज, इसके अनुसार जो मिनिमम वेज है वो एम्प्लॉयज को दिया जाता है, इनके इसी के अनुसार वर्किंग आवर्स को बनाया जाता है, इसी के अनुसार हेल्थ एंड बेनिफिट्स के लिए स्टेप लिए जाते हैं। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, द डायनेमिक एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज shaped by psychological, social and economic factors. So employer-employee relationship का क्या मतलब है? ये तो नाम से ही हमको पता चल रहा है कि they are talking about the independent relationship between the employers and the employees. ओके, और ये हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। इट हैज़ टू बी, इट शुड बी डिपेंडेंट, people should be psychologically ready to maintain a good relationship. They have to understand that this affects the social environment and economic factors also. So employer-employee relationship means the independent relationship between the employers and the employees. Okay, union recognition. So employers acknowledge and accepting trade unions as representatives of the employee for collective bargaining process purposes. Now, union recognition. Now, what is a union? Union is a group that is formed by the choice of the workers, and this union is generally formed in order to represent the workers of the organization in front of the management. Okay, and it is same. Trade unions and unions are same. Okay, so यूनियन रिकॉग्नाइजेशन मीन्स एम्प्लॉयर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं किसी भी ट्रेड यूनियन को और उनको अलाउ करते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर सके एम्प्लॉयज़ को कलेक्टिव बार्गेनिंग के पर्पसेस के लिए। ओके, स्ट्राइक का मतलब तो वी नो। ओके, एनीवेज इंडस्ट्रियल रिलेशंस में स्ट्राइक का क्या मतलब है हम देखते हैं। अ वर्क स्टॉपेज बाय एम्प्लॉयज़ टू प्रेशर द एम्प्लॉयर टू मीट द डिमांड्स और रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तो स्ट्राइक का मतलब होता है वो वर्क स्टॉपेज, वो वर्क प्रेशर जो कि एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर्स को देते हैं ताकि वो उनका बात माने, उनका डिमांड को एक्सेप्ट करें। लॉकआउट्स क्या होता है? ये एक रिफ्यूजल होता है एम्प्लॉयर की तरफ से
टू रिफ्यूजल होता है एम्प्लॉय की तरफ से, जिसमें वो रिफ्यूज़ करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम काम नहीं करने देंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ऑफन इन रिस्पॉन्स ऑफ अ स्ट्राइक और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और ये कब होता है? एम्प्लॉयज़ ये डिसीजन तब लेते हैं जब कोई स्ट्राइक चल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है? इट्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी दैट रिजॉल्व्स द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू बाइंडिंग डिसीजन। तो एक ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, और इसके डिसीजंस को लोगों को, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों को मानना पड़ता है। मीडिएशन, so a neutral third party facilitating negotiations to resolve industrial disputes. These concepts are essential to understand uh, to un- to understand the complex dynamics of industrial relation and managing employment relationships. So ये this is again a neutral third party जो दोनों में से किसी के तरफ से नहीं होता है, वो बीच का होता है, और वो नेगोशिएशंस को करता है दोनों के बीच के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, so this was all about the first topic of Unit 5. I will very soon upload the second topic, and you will get this PDF below my video. Okay, you can avail the facility very easily. So please go through this PDF if you do not understand anything. This PDF, like this notes, is very easy, and I hope that you will definitely understand it. Anyways, if you do not understand, you can message me and ask me. Okay, thank you very much. Take care.